सबसे पहले तो वन थिंग दैट नीड्स टू बी क्लियर्ड इज आई होप आप क्लास 10 पास कर रहे हैं, है ना, अदरवाइज द पॉइंट ऑफ दिस क्लास इज़ नॉट देयर, है ना. आई होप बोर्ड्स अच्छा गया हो. पूर्वी राइट, कैसा था? गुड. अबव 90-95% इन दैट रेंज. कृपा. सो before we start, you need to understand the mechanism of the class. And first thing, I will first try to dissuade you a little, but it is your choice now. If anybody is trying to join only for economics, I have a batch, I've made the timings, but as a responsibility of a teacher, you don't need tuitions in ISC economics. CBSE economics, 100% you would require my help or anybody's help. If you have economics, try to take some help. I'm not trying to sell my product to you कि हाँ ले लो मेरे से ही पढ़ना होगा. Any teacher would do as long as the concepts are explained properly. For ISC economics, the syllabus is very historic in nature, where we study not a lot of conceptual things, but yes, you might find difficulties in a portion which is statistics. तो आपको वहाँ मेरा help लग सकता है. ISC वालों को बोल रहा हूँ. So if you are joining only for economics, we have decided our classes to be happening for once a week. एक दिन ही होगा हफ्ते में, and we'll decide अभी क्या timing है वगैरह वगैरह. Even then, you want me to tell you क्या है? First chapter is about definition of economics. ठीक है, 4 definition रटने हैं. Second chapter is basic concept, उसमें थोड़ा बहुत समझना है utility क्या होता है, production क्या होता है. Third chapter is basic problems of an economy, what to produce, how to produce, for whom to produce. Fourth chapter is types of economy, capitalism, socialism and mixed economy. Fifth chapter is solution to the basic problems. Sixth chapter is poverty, unemployment, rural development. वहाँ से हिस्ट्री पूरा चालू. एक भी चीज़ को समझने का नहीं है. गरीबी क्या समझाया जाएगा? गरीबी को याद रखना होगा कि कितने प्रतिशत लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, पॉवर्टी का क्राइटेरिया क्या है ना. देयर इज ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी काउंट एंड देयर इज पर कैपिटा एक्सपेंडिचर. So if people can afford 2100 calories in rural areas and 2400 calories in village areas, urban areas, then we say that you are not poor. But that's not a true measure, right? आज खाना टेबल पे आ रहा है पर पानी साफ नहीं है. एक सर मेरे को बात करने दो, आप लोग मत करो अपने में, ठीक है. So again, I am not saying that I don't teach economics. I am saying that it is a disclosure thing that I should make to you, that there is not a lot of many things to teach. And anyone you had economics in class 9, it's the same syllabus. So Meg, that answers your question. अगर 9वीं के बच्चे को करवा रहा है तो 11वीं में कोई rocket science तो नहीं होगा, है ना. So again, your choice, your call. If you think it's necessary, because I understand the concern. It's a new subject for me. I am not from commerce. I had science till 10. I don't want to lose out. I don't want my base to become weak. Good news, class 12 ISC का economics is totally different. In that, I will tell you, just like I told her to take economics, I will tell you to take economics tuition if you are not taking. It is mandatory to take economics tuition, whether from me, whether from someone else, in class 12. Why? Because the 50% syllabus which is microeconomics is in CBSE in class 11. तो इकोनॉमिक्स वहाँ बहुत बड़ा फ़र्क हो जाता है ISC और CBSE में, इसीलिए ISC CBSE की इको क्लासेस साथ में नहीं हो सकती, पर अकाउंट्स का सिलेबस सेम है. नाउ आई हैव टू एक्सप्लेन माई सिस्टम, हाउ आई डू माई क्लासेस. सो द सिस्टम वर्क्स लाइक, टू गिव यू एन एग्जाम्पल, पूर्वी, आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द करेंट क्लास 12 टाइमिंग्स, ठीक है. सो वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ डे 1 एंड डे 2. डे 1 एंड डे 2 का मतलब है, मान लीजिए कि आई एम टॉकिंग अबाउट अकाउंट्स क्लास 12, ठीक है. सो वी हैव अ क्लास ऑन मंडे 7 PM. We have a class on Tuesday 5:30 PM and we have a class on Saturday at 9:30 AM. All three are day 1. मतलब if नहीं, Aditi, you choose Monday, you can't come on Monday, you can come on Tuesday, same thing is being repeated. Monday Tuesday दोनों busy हैं आप, Saturday आइए, same चीज़ तीनों दिन होगी. All these 3 timings are for one class, right? Because अगर आप गिने, मैम have you taken math? 2 days you require for maths, 2 days you require for accounts. If you are taking English tuition, you will require 2 more days.
6 दिन, और उसके बाद बच्चा इको भी लेना चाहता है 7। कुछ बहुत विद्वान लोग हिंदी ट्यूशन भी लेते हैं। 9 दिन तो सर हफ्ते में ही नहीं है, इसमें 6 घंटे स्कूल है, आपको अपने लिए समय तो नहीं मिलेगा। और देखिए, आई ऑलवेज बिलीव आप तभी पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे जब वो आपके लिए बर्डन नहीं है। If you start out like this, by class 12 you are going to burn out, you would not want to study. You have just given a board. I'm not saying relax, I'm just saying that don't be too hard on yourself, because next year is a very big uphill. मतलब अगर ये x है तो 10x है क्लास 12। मतलब द लेवल ऑफ जंप आप एक बार सीनियर से पूछिएगा फ्रॉम 11 एंड 12 क्या है, सो दे विल टेल यू दैट इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। मतलब इंस्टाग्राम में मीम है उसको लेकर, देखे होंगे आपने कि 11 की पढ़ाई में एक छोटा सा डॉग दिखाता है और 12 की पढ़ाई में एक शेर दिखाता है, और जेन्युइनली वही डिफरेंस है। सो आई डोंट वांट यू टू स्टार्ट आउट लाइक दिस कि हाँ हम बहुत पढ़े 8 महीने तक पढ़े, उसके बाद पूरा फुस हो गया। सस्टेनेबली करिए ताकि संभव हो, ठीक है। सो डे 1 का ये कॉन्सेप्ट है। कृपा D2 के हमारी जो क्लास 12 की टाइमिंग्स है वो है थर्सडे 7 बजे, फ्राइडे 5:30 बजे, और संडे 11 बजे। नाउ व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस? आप पूछेंगे भैया मेरा 12 में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, अभी मेरे को 11 की ट्यूशन जाननी है। देखिए, ये समझने के लिए है कि अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस मीन्स वी हैव 9 बैचेस। हाउ? मंडे गोज विद एनी ट्यूसडे फ्राइडे संडे, ट्यूसडे गोज विद एनी थर्सडे फ्राइडे संडे, Saturday goes with any Thursday, Friday, Sunday. It doesn't matter if your day 1 comes before day 2. It won't matter. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? You understand the system? By chance, कृपा, you are selecting a batch which is Monday, Thursday, and you are unavailable on a Monday. If you have time, try to come on Tuesday, because MP Birla will have a little time problem with 5:30. So what I do generally for my MP Birla students is try to give them a morning batch. कि अगर आपको शाम को आने में दिक्कत है, आई कैन मेक दिस 5:45, 15 मिनट का कोई इशू नहीं होता है। 5:30 की क्लास 5:45 ही लगभग स्टार्ट होगी, है ना, बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेज, इट विल टेक 5-10 मिनट्स टू acclimatize, calm down, then we start studying. So if 5:30 becomes 5:45, for the last 14 years what they do, they come directly from school. एंड बाय 5:45 दे रीच। अभी तो वापस टाइम एक्सटेंड हो गया, तो उससे पहले तो और पहले छोड़ रहे थे, अगर 1 साल पहले की बात करें तो। हाँ, अभी 5 बजे छोड़ते हैं शायद आपको, 5:15, हाँ वापस हो गया है। सो इफ़ इट वुड बी पॉसिबल फॉर यू गाइज कम ऑन 5:45, बट आई अंडरस्टैंड दिस इज द ओनली प्रॉब्लम दैट MPB स्टूडेंट्स हैव, बट दे गेट अ एक्स्ट्रा एडवांटेज ऑफ हैविंग दैट मॉर्निंग 1.5 hours फ्रॉम 9 o'clock to 10:30. So they come here and then they leave from there. The current class 12 is also doing that. So उनको 2 दिन अकाउंट्स का दिया गया है, 2 दिन इको का दिया गया है अभी के लिए, उनसे एक दिन ले लिया जाएगा और वो आपको डेडिकेट किया जाएगा इफ़ यू वुड वांट टू हैव अ मॉर्निंग बैच। दैट्स अ वेरी बिग इफ, है ना। और कोई स्कूल में ये संभव नहीं है, वन ये और दूसरा इज भवानीपुर। देर आर ओनली 2 day schools दैट आई एम टीचिंग हु स्टार्ट क्लासेस अराउंड 11ish, है ना। व्हाट इज द फर्स्ट पीरियड? कितने बजे चालू होता है स्कूल? एंड यू हैव टू रिपोर्ट बाय, सो यहाँ से 10:30 से यहाँ से सब जाते हैं डायरेक्टली, आपको कुछ ना कुछ वाहन मिल जाएगा एंड यू कैन डू दैट, और आई कुड कम एंड टीच एट 8:30, है ना। मेरे से वो 7 बजे वाला नहीं होगा, सॉरी, मैं पाठक सर जितना डेडिकेटेड नहीं हूँ, ठीक है। मैं 7 o'clock की क्लास के लिए मेरे को भी 6 बजे उठना पड़ेगा, वो मेरे को नहीं लगता मेरे लिए संभव है। आई कैन मैक्सिमम कम डाउन टू 8 o'clock, so 8 to 9:30, 10 maybe, and if you don't want to leave by 10, you can sit here, whenever you want to leave you can leave, that's not a problem. By chance you want to come directly, you come early, not a problem, बगल वाले रूम में वेट करना, AC चलाना, बैठना। This place is open from 8 AM to 9 PM every day, so in case you need to come here, please come in. Good evening. Yes ma'am. Ma'am, what is your name? Please sit ma'am. Ma'am, you can wait in that room, please switch on the fan, switch on the AC, please sit comfortably. Maximum 45 minutes more, maximum ma'am. So this is not applicable for you, right? So I am just discussing right now, because the batches have not been finalized, it cannot be finalized until you say yes.
So what the timings in the morning at 9 o'clock we had a class, orientation. We had another class at 4 p.m. and now we are having it with you at 7. One more batch will be made. So generally our number goes to around 120, 130. And we can't have just 3 batches. ठीक है? We generally have 4 batches for accountancy. So for accountancy I would suggest कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या टाइमिंग डिस्कस हुई है. एक मॉर्निंग बैच बनेगा एमपी बिरला का, दैट विल बी अ 4th बैच, एंड एक और बैच बनेगा विच विल बी अनदर सैटरडे संडे. So total of 5 batches, because if we reach to 130 or 140, we cannot have 50 students sitting in one class, है ना. The quality of the class cannot deteriorate. So इसलिए 4 से 5 बैच बनेंगे. आप कोई भी बैच में कभी भी आ सकते हैं, मेरे से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है. सेकेंडली, इफ़ बाई चांस यू आर अनएबल टू कम टू क्लास, बारिश हो गया, तबीयत ठीक नहीं है, मन नहीं कर रहा है, just view the class online. Every single class will be sent, the link will be sent 5 minutes before the class, like these guys are attending. How many of them are there? 3 of them. And very proudly, recently from 2020 we have started teaching students outside Kolkata. So we have a lot of students who are doing only online and not just from Calcutta. So why am I telling you this? Not to try to boast or anything, because online works. It might not be as effective as an offline class, I am saying that to you, but it works. And one of the students, I think it is Vishwas or someone, is attending classes from Urbana. It's as good as outside Calcutta. Sorry अगर कोई है, but it's very far, है ना. Urbana. My God, आप आएंगे कैसे? But still that's a lot of travel time. Yes, please pick it up. But ठीक है, that's up. You need to manage that. Sometimes when you don't want to travel so far, I am saying don't miss the class. Do it online. है ना? The third option, I wasn't available, I couldn't attend the class. Every single class is recorded, uploaded the same day. You will get it by night, 11ish. You have to finish the recording, see it before you come to the class. The reason that we do this is the recorded class is the last resort of the student to do revision. है ना? I always take feedback from my students and they said that when we come to class हमको सब समझ में आता है, but एग्ज़ाम से पहले मेरे को रिविज़न करना है. तो मैं यूट्यूब में दूसरे टीचर्स को देख रहा हूँ. तो मैं बोला कि अगर वही मेरा ही मटीरियल आपको मिल जाए जो साल भर आप पढ़े हैं, the explanation, the examples that I have given, if I give you an online platform to view that, so will that help? They said it will be perfect, because I don't want to hear another explanation. If you have understood something by my explanation, you have registered that, so you would want that explanation to be revised, and that would help you understand it better. So मतलब I am trying as much as possible कि आपके यहाँ पर कोई भी backlog ना आए. Because right now it is a very important year. Class 11 is actually more important than class 12. I always say this. The reason being that अभी जो आपका interest develop होगा, अभी जो आपको accounts, economics, commerce में प्यार होगा या नफ़रत होगा, वो आपके 12 में reflect करेगा. और ना कि 12 में इसके बाद आप कौन सा कोर्स चूज करेंगे will also be determined on the interest and the मतलब how much you like the subject. If you dislike accountancy, you would not opt for chartered accountancy. If you dislike economics, you would not want to do economics honors. It's as simple as that, na? So this is a formative year. I'm not saying you have to work very hard this year. I'm saying that you just need to be consistent. दिन का आधी घंटा दे दो, more than enough, half an hour. उससे ज़्यादा तो रील देखते हैं हम लोग. मेरा इंस्टाग्राम का टाइम दिखाता है 1.5 घंटा, पता है, पर डे. हम डिलीट कर दिए हैं देख के. इट वाज अ बिग शॉक टू मी. 1.5 hours I am spending out of 24 hours on a phone, that too stupid Instagram. So I'm just saying इससे ज़्यादा तो हम लोग stupid things में टाइम दे रहे हैं. Half an hour, that's it. But consistently, रोज का करना है. कभी कभी मिस होगा, बर्थडे होगा, दोस्त का बर्थडे होगा, acceptable. But try to be as consistent as possible. Now let me disclose or talk about the timings that these guys said they want to. So let's see whether this fits. If not, then we'll fight.
ठीक है, हम लोग लड़ेंगे कि और क्या टाइम संभव है, क्योंकि फिर मेरे को थोड़ा 12 के साथ शफलिंग करना पड़ेगा. करेंटली ये जो टाइमिंग सेट हुआ है, एवरीबडी इज एक्सेप्टेड इन द लास्ट बैचेस, एंड आई एम टेलिंग यू अगेन 2 more बैचेस विल बी मेड. In case these timings don't suit you or you don't want these timings, let me know. I will create a morning batch for MP Birla and one batch I will create for a weekend batch. So situation is, acha, मैं क्या taking eco only, right? Or eco accounts? Perfect. So I'm only first of, Amanda, you're taking eco and accounts. मैं फिर बोल रहा हूँ, हाँ, don't think that I don't want to teach. I love teaching. मेरे को बहुत मजा आता है पढ़ा के. eco में 11 में ट्यूशन का उतना नीड नहीं है. But as you are interested, try it for a month. If you think there is value addition, continue. Otherwise next month से सिर्फ accounts ले लेना. ठीक है, totally your call. आपका नाम मैं भूल गया मैम. प्रियांशी, आप लोग का टाइमिंग सेट किए हैं ये लोग. वेंसडे को पहला day 1 है, which is at 5:45. This is the first day 1. अब सारे एमपी बिरला वाले चिढ़ गए, तो उनके लिए मैंने बोला 7:15 सेम डे, उसी दिन. इफ यू कांट कम एट दिस टाइम, यू हैव पाठक सर, सीए सर, माई मदर, कोई और दूसरा ट्यूशन, द सेम थिंग विल बी रिपीटेड जस्ट 1.5 hours लेटर. तो अगर आपके लिए संभव है तो ये, नहीं तो वी हैव सैटरडे एट 12:30 PM. The drawback to this is that you have to wait all 5 days of the week and then this comes. But then your weekdays are free. You can focus on accounts, math. You can focus on other subjects if you're taking other subjects. But your weekend gets blocked. There are pros and cons to every discussion. Every discussion. है ना, इसकी भी benefits हैं, इसके भी demerits हैं, बहुत झमेले हैं. पर ये हमारा first 3 options. All 3 days, Amanda आप तब तक आए नहीं थे, all 3 days we do the same thing. So don't select these 3 and come all 3 days. एक ही चीज़, अच्छा आप आना चाहते हैं तो तीनों दिन आइए, बट ये तीनों दिन सेम चीज़ होगा, एंड यू कैन अटेंड एज मेनी क्लासेज एज यू वांट. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन दैट. अगर आपको उतने अच्छे से फर्स्ट में नहीं समझ में आया एंड यू थिंक यू वुड वांट टू अटेंड इट अगेन एंड दैट वुड हेल्प, प्लीज कम टू क्लास. द day 2 options, Kripa, currently are one was Saturday because these students are coming from very far, so they said we want to do back to back. 12:30 first class, 2 PM second class, एक दिन में दोनों ट्यूशन करके घर. Now merit, 0 travel time, perfect for students like Aditi. You come once to New Alipur by taking a flight from your place, whatever, or chartered helicopter, and you do both the classes and you're done for the week. But ma'am, there's a very big drawback. And last 12 years of teaching experience, I have understood what is the pain the students go through. Saturday plan बना, एक साथ 2 क्लास गया और बनता है ना? If you plan out to go somewhere, so if you miss a Saturday, you miss both the classes. So that is why there is a very big positive that 0, मतलब minimum travel time. You come for 1 class, do, बीच में गैप भी है, घबराइएगा मत, 15 मिनट ब्रेक दूंगा, उसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे. What is the other day 2 option? We have Thursday at 4 PM. This is absolutely not applicable for MP Birla. This is for students other than MP Birla. Because आपका तो स्कूल चल रहा होगा, ये संभव ही नहीं है. This might be possible for Loreto, this might be possible for South City, this might be possible for La Martiniere, DBPC and all other schools. I think Ansh Singh is calling. आप एक बार उसको रास्ता समझा सकते हैं क्या? नहीं, just call him. And the other timing is again on a Saturday at 4 PM. So this is for people who don't want to do back to back but don't want to come in the afternoon. So you do a Wednesday 7 PM class or a Saturday 4 PM class. Apart from this, Kripa, I promise you there will be a morning batch, as I told you, which will be only dedicated to MP Birla, and another batch which we'll add around 6 o'clock on day 1 and on Sunday at 12:30 or 1 o'clock. So one would be just Saturday Sunday, one would be Saturday, one would be Wednesday Saturday. Any of the day 1s right now can be merged with any of the day 2s. So now you need to make that call. 2 days for accounts. Any 2 days would work.
1 from here, 1 from here. इन केस महक लेट्स से आपके लिए 5:45 इज फीजिबल, राइट? तो मान लीजिए आप डे 1 सिलेक्ट करते हैं वेंसडे को और आ नहीं पाते हैं, तो आप 7 बजे आ जाओ। 7 बजे भी नहीं आ पा रहे हो, सैटरडे आ जाओ। अगर आप सैटरडे नहीं आ पा रहे हो, रिकॉर्डिंग देख कर आओ, ताकि आपका डे 2 में आपको समझ में आए। दैट इज द होल आइडिया ऑफ डे 1, डे 2, which I have been doing for the last 8 years and it has been working for me. So this helps students to navigate the other tuitions because all of you are going to different teachers. वहाँ से एक बार बोलना, उधर से आ जाना, ठीक है? तो आप लोग डिसाइड करेंगे वी हैव हाउ मेनी हियर, 2, 3, 4, 5, प्लीज 6, ये भी लग रहा है हमको तीनों एमपी बिरला ही हैं, तो 9 ऑफ यू आर राइट नाउ इन एमपी बिरला। अब पता नहीं प्रेम है क्या है, एमपी बिरला से हमेशा ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं। करेंटली क्लास 12 में लगभग अराउंड 35 स्टूडेंट्स हैं। वो उधर वो हटा देना। एंड जो पास आउट किए थे, मतलब आई डोंट नो, आप जानते नहीं, माधवी लोग वाला बैच, उनमें तो 40-45 बच्चे थे, हैं? तो मतलब इट्स जनरली अ बिग बैच। सो आई दैट इज़ वाई यू विल सी दैट मतलब एमपी बिरला गेट्स ए लिटिल स्पेशल ट्रीटमेंट कि अरे मॉर्निंग का बैच अलग बनेगा, क्योंकि अब है, देखो अब मेरा करियर का शुरुआत भी एमपी बिरला से ही हुआ था। मेरे पहले 3 जो स्टूडेंट थे, आई स्टार्टेड विद 3 स्टूडेंट, ऑल 3 फ्रॉम एमपी बिरला। सो आईएससी में एमपी बिरला हैज़ बीन ऑलवेज विथ मी, एंड सीबीएसई में वी हैव एलएसए। सो वो चंक उधर से आ जाते हैं, तो उनका एक अलग अलग बैच बनता है, हर साल बनता है। सो आई एम जस्ट बीइंग वेरी फ्रैंक एंड ओपन विथ यू दैट दीज आर द प्रोबेबल टाइम्स करेंटली। It is open up for discussions and there will be 2 batch additions, है ना? अगर आप 9 के 9 मॉर्निंग में शिफ्ट करना चाहते हैं वो भी चलेगा, सिर्फ एक बच्चा मॉर्निंग आए तो भी चलेगा। मेरा ऐसा कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है कि 3 बच्चा 4 बच्चा आना होगा। जस्ट इफ इवन 1 स्टूडेंट अग्रीज टू कम इन द मॉर्निंग, आई विल क्रिएट अ मॉर्निंग बैच। बट बी केयरफुल, ये ट्राई करना है मेंटेन करना। सो इट इज़ नॉट अ डे थिंग, and I am always say this before I start the class, please do not make a decision to join my classes before you attend at least 2 to 3 classes. मैं genuinely बोल रहा हूँ, मेरी नज़र में मैं मेरा फेवरेट हूँ, मेरे हिसाब से मेरा कोई बेटर टीचर ही नहीं है। बट इट इज़ वेरी प्रोबेबल कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आए। नॉट बिकॉज आई एम अ बैड टीचर, बिकॉज पीपल हैव प्रेफरेंसेस, पीपल हैव डिफरेंट लर्निंग कैपेबिलिटीज, एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आए, एंड यू डोंट हैव टू मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन योर सीनियर्स और योर ब्रदर सिस्टर हैव recommended me. You will make a decision as an informed decision whether you're able to understand my classes or not. That is the only thing that matters. कि आप यहाँ पर जब आते हैं, वो 1.5 घंटा जो आप इधर बिताते हैं कि एक एक शब्द आपको समझ में आए, that is the only thing that matters. Everything else is secondary. These options are nothing but to give convenience, है ना? These are not the main criterias. Just because I am giving multiple options, that should not be your criteria to decide tuitions, है ना? Just because it is close to your house, that should not be your decision. Just because you get an online option, it does not be the online में मैं अगर गाना गाऊँ और पढ़ाऊँ नहीं, क्या फ़ायदा हो उस क्लास का? आराम से 3 क्लास करो, no money to be given, nothing to be given. If you don't like the classes, discontinue the classes. I will refer someone to you जो आपको मतलब मे भी आपके साथ बेटर मतलब मैच करे, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कि ये सारे बच्चे मेरे से ही पढ़ेंगे। जिसको जो सूट करे उसको वही करना चाहिए। आज मेरे पापा से झगड़ा हो गया, पापा बोले कॉफ़ी घटिया है। अब मेरा कॉफ़ी से प्रेम है, मैं बोला आप कैसे बोल सकते हैं? बोला टेस्ट एंड प्रेफरेंस है। तो आपको हो सकता है मैं वर्स्ट टीचर लगूं, वो आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस है ना? पर है तो कॉफ़ी गजब की, मेरे पापा को नहीं पसंद। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो आप मत पियो, मैं तो अच्छे से पीऊँगा क्योंकि मेरे को सूट करती है। आई हेट टी, मेरे पापा दीवाने हैं, तो हम लोग का झगड़ा चलता रहता है। बट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दैट दीज डिसीजंस आर गोइंग टू इफेक्ट योर क्लास 12। चाहे कोई कितना भी बोले CUT है, 12 का मैटर नहीं करता है। आज भी कलकत्ता में मैक्सिमम कॉलेजेस आर नॉट टेकिंग CUT मार्क्स, एंड इवन द CUT दैट यू विल गिव इज 11-12 सिलेबस।
सो CUT में नया सब्जेक्ट नहीं आ जाएगा, जो आप ये 2 साल पढ़ोगे ना वहीं पे टेस्ट है. द एंट्रेंस एग्जाम फॉर DU and all big universities now are going under the NCERT concept of giving an entrance exam which is CUET. College admissions are not just now based on your board marks. DU will not consider even if you get 99.99. You will have to sit for an entrance exam for the top colleges in India, which is Hindu College, SRCC, St. Stephen's. Pura DU mein you need CUET. If you are looking for Xavier's, then you don't need CUET, you need board marks. But English, Maths +2. Math is compulsory. तो 2 सब्जेक्ट आप कोई भी चूज कर लो, फर्क नहीं पड़ता. इट कैनॉट बी अ लैंग्वेज बिकॉज इंग्लिश ले चुके हैं तो हिंदी नहीं ले सकते, पर इंग्लिश, मैथ्स +2. मैथ नहीं लिए 11-12 में, जेवियर्स नहीं लेगा. ठीक है, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ऑल दीज डिसीजंस आर जस्ट मतलब गिवन टू अस कि हाँ ये करना है. क्यों? कोई बड़ा आदमी बोला है, कोई बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, पर आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लोगे, है ना. कितने साल के हैं मैम आप? 16-17? 2 साल में तो वोट देंगे आप, गाड़ी चलाएंगे. अ मशीन विल बी गिवन टू यू दैट कैन एक्चुअली लिटरली किल अ पर्सन. So if that kind of decision making is given to you in the 2 years, right now most of you have that decision making power. So you will make the decision for yourself, not anybody else. And you will own up to the decision कि हाँ मेरा डिसीजन था ये, कि नहीं ज्वाइन किया क्योंकि मेरे को नहीं करना था, मेरे को समझ में नहीं आया, not because of any other recommendation. So try those classes and then see. Now I want to ask you individually, do these timings work for you? बोलिए मैम, what would be your tentative days? You can change every week, I don't mind. Huh? What timings would you take? Wednesday 5:45 तक पहुंच पाएंगे आप? परफेक्ट है मैम. एंड डे 2 वुड बी सैटरडे 2 PM और 4 PM. तो देख लेना, धूप हुआ तो 4 बजे आ जाना. मतलब सेम चीज पढ़ाऊंगा, एवरीथिंग विल बी द सेम. एंड बाय अप्रैल एंड वी गेट मोर इनरोलमेंट्स बिकॉज अभी बहुत बच्चे बगावत मोड में हैं कि मैं नहीं पढ़ूंगा, अभी मैं बोर्ड देकर आया हूँ. सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव टोल्ड मी आई विल कम टू यू फ्रॉम 15th. So they will require another batch. So my plan is Saturday at 6 o'clock maybe, day 1, and Sunday another day. In case you think that you would want to take a Saturday Sunday batch, you can shift whenever you want. आपको मालूम है कि आप मंडे को अवेलेबल नहीं रहेंगे? हाँ, तन्वी wants to ask something. Please तन्वी, tell me. ये जो batches है, are these for accountancy or? This is only for accountancy. Eco we have only 1 batch once a day. थोड़ा सा eco neglect होता है ISC का. But this is only for accountancy. Tanvi, you are taking accountancy or economics? So only eco. And ISC or CBSE? CBSE. CBSE की टाइमिंग हफ्ते में 2 दिन है तन्वी. I'll just tell you, Tuesday 4 PM and Wednesday 4 PM. So for CBSE, like people like Aditi, again you have a back-to-back option. What you can do? You can do 4 PM and you can do 5:45. So what I try to do always is try to reduce travel time as much as possible. CBSE will require 2 days because उनका economics tough है, mandatory है उनको eco लेना. मेरे से लो, किसी और से लो, doesn't matter. But if you are CBSE, you will require economics tuition. There are about 150 diagrams in microeconomics, which ISC does in class 12. So इसीलिए ISC का सिलेबस 11 में ईजी है, 12 में डबल टफ है. What CBSE smartly did, we have a portion called microeconomics and macroeconomics. So what CBSE did, microeconomics को 11 में ले आया और इंडियन इकोनॉमी को ले गया 12 में. तो इंडियन इकोनॉमी ईजी है, तो 12 ईजी हो गया पर 11 टफ हो गया. और आपका क्या रहा? माइक्रो टफ, मैक्रो टफ. इकोनॉमिक्स is the most difficult subject in class 12. अकाउंट से भी ज़्यादा झमेला वाला है. पूछिए अगर आपके सीनियर्स जो हैं, not the one who are in class 12, who passed out this year, जो अभी बोर्ड दिए हैं, आपके साथ जो बोर्ड दिए हैं 12 वाले, इको पेपर में पता है बच्चे आके नाच रहे थे, क्या पेपर गया, क्या पेपर गया. मेरे से गलती क्या हुआ, आई क्रिएटेड अ वीडियो वेयर आई वाज डिस्कसिंग द पेपर. फ़ोन आ गया रोते रोते, भैया मेरा 12 मार्क रॉन्ग है, मेरा 10 मार्क रॉन्ग है. द ऑप्शंस वर सच दैट एवरी आंसर सीम्ड राइट,
But when we discussed the paper, everything was so technical that they didn't even know what went wrong. So वो 12 का पार्ट 12 में करते हैं, पर अभी फिलहाल 11 का ये कहानी है. अब does these things work for you? सब तो क्या होता है सर? एक तो पहले बताओ, पहला दिन कौन लेट आता है? तो जल्दी नहीं आ सकते थे? क्या नाम है आपका बताइए तो पहले? अंश सिंह सिसोदिया. आपका सर? आदित्य चौधरी. आप रिलेटेड हैं? नहीं. अच्छा, आयुष मिश्रा जी. सिचुएशन डे 1 डे 2 का है, मतलब ये तीनों दिन सेम चीज होता है. तो अगर आप 5:45 तक आ सकते हैं, आपका हरकत देख के लग तो नहीं रहा हमको, आप 7:15 बजे ही आएंगे. 7:15 को ये सेम चीज रिपीट होगा. सोचिए दोनों दिन मन नहीं किया, स्कूल में थक गए, मन ही नहीं किया आने का, आप सैटरडे को 12:30 बजे आ जाइए, सेम चीज होता है. अगर ये डे 1 में से एक दिन हो जाए तो डे 2 में कोई भी ये 3 टाइमिंग में आपको आना है. ये आपके लिए देखिए एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि आप एमपी बिरला हैं. ये एप्लीकेबल है. और मैंने बोला है, आप अभी 9 हैं, 9 में से अगर 3 जन भी मान जाए तो मैं एक दिन तो एटलीस्ट अभी आपको दे सकता हूं, कोई भी आप जो दिन मांगे थर्सडे या फ्राइडे में, जो मैं आपको मॉर्निंग का 8:30 का टाइम डे 2 का दे सकता हूं, है ना. तो पहला ये सवाल है कि ये दोनों में से कोई डे 1 डे 2 बैठ रहा है. अगर बैठ रहा है तो ठीक है, और अगर मॉर्निंग का प्रेफरेंस है तो मॉर्निंग में शिफ्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को. या अप्रैल महीना आपको अभी ऐसे चालू करना है, मॉर्निंग में से चालू करना चाहेंगे, टोटली योर कॉल, है ना. दिस इज माई ब्रेड एंड बटर. मैं यहीं पे मतलब जीता हूँ, मरता हूँ, मेरा यही घर है, मेरे लिए एवरीथिंग इज दिस ओनली. सो आई विल ऑलवेज ट्राई टू अकोमोडेट एज मच एज पॉसिबल, है ना. सो totally up to you. Amanda, what are your timings, ma'am? If you had to choose? Wednesday, and day 2 would be 4 p.m. Tanvi, for CBSE economics, Tuesday, Wednesday, 4 p.m. Does that work for you? 4 को 4:15 समझिए. 4 बजे आके कोई मतलब वो नहीं है 4 बजे पढ़ाई नहीं. 5 मिनट बैठेंगे, 5 मिनट बात करेंगे, थोड़ा क्या जीवन में है आपके, खुश है कि नहीं आप, 15 मिनट बाद क्लास चालू करेंगे, है ना. बट ये मतलब नहीं है कि 4:15 का क्लास आप 4:30 आएंगे. 4 बजे आपको पहुंचना है. अब वो 5-7 मिनट लेट मेरे को भी होता है, आपको भी हो सकता है, ह्यूमन है ना. आप कहाँ कि आप यू कैन नॉट प्रिडिक्ट ट्रैफिक इन कैलकाटा. सो आप 3:30 बजे निकल कर भी लेट हो सकते हैं, है ना. एंड यू कैन मतलब रीच इन टाइम इवन इफ यू आर लिविंग इन गैंजेस, बट स्टिल आते आते आपको मे बी 10-15 मिनट्स एक्स्ट्रा लग गया. इट्स पॉसिबल. सो दैट इज आई एम सेइंग 4 का 4:15 भी हो जाए, इट वोंट हर्ट एनीवन. सो एवरीबडी, एनीबडी जिसका कोई डे 1 नहीं हुआ, कोई डे 2 नहीं हुआ. केशव, व्हाट वुड यू चूज सर? टेक योर टाइम, यू डोंट हैव टू डिसाइड. सर व्हाट सोचिए, आप सोच रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं, ठीक. जस्ट आई एम से एक बैच मन में रख लेना, फिर फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑलवेज देयर कि आप 5:45 की जगह 7 PM आ सकते हैं, हाँ. सैटरडे आ सकते हैं, हाँ. पर एक बैच बना लो मन में, नहीं तो क्या होगा, यहां नहीं जाके यहां भी नहीं जाएंगे, ये भी छूट जाएगा. मेक वन बैच. कृपया एनी टाइमिंग दैट सूट्स यू हियर. व्हाट वुड बी द टाइमिंग्स? Wednesday 7:15 is perfect. And would you want me to shift Saturday a little in the evening? Do you want it around 5ish? 4 कि 5? 4 ही रहने दें. 4 ही रहने देते हैं. देखिए क्या है ना, ये ट्रायल एंड एरर है. Let us start, see whether it suits, and then we are going to adjust, है ना. धीरे धीरे हम लोग एडजस्ट करेंगे, कोई डिफिकल्टीज आएंगी, and then we are going to keep changing accordingly. CBSE timings are this. If you are taking eco as well, Sunday at 12:30 we have decided that class to be. बहुत ही ऑड टाइम है, मैं जानता हूँ, पर सब्जेक्ट भी वैसा ही है. तो चाय पे चर्चा होगा संडे को 12:30 बजे. इट विल बी लाइक दैट ओनली. इकोनॉमिक्स once a week. ठीक. Again I am suggesting you could try on your own, but everybody is scared. आई वुड सजेस्ट कि अगर आप है तो 12:30 बजे संडे ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आ भी सकते हैं, योर कॉल. फॉर CBSE इट्स ट्वाइस अ वीक फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज दे हैव अ टफर सब्जेक्ट एंड द सिलेबस इज अ लिटिल डिफरेंट.
तो ये टेंटेटिव टाइमिंग सेट है. रिगार्डिंग बुक्स, वी फॉलो 2 books in class. You need to buy 1, any of the one which your school has prescribed. So 14 years of teaching, T.S. Grewal for MP Birla, for Loreto, for Lamartine, ठीक है. इंडस वैली D.K. गोयल, ठीक है. लक्ष्मीपत सिंघानिया D.K. गोयल, DBPC D.K. गोयल. कुछ स्कूल की प्रिस्क्राइब कुछ और है, कुछ स्कूल्स की प्रिस्क्राइब बुक्स कुछ और है. जेवियर्स T.S. ग्रेवाल, ये आपको प्रिस्क्राइब किया है, आपको यही लेना है. इसको खरीदने का इफ यू हैव गुड मनी प्लीज बाय, अदरवाइज ऑल PDFs आई प्रोवाइड. हम क्या करते हैं, PDF को यहाँ थ्रो कर देते हैं बोर्ड पे और बोर्ड से सम बना लेते हैं. सो PDF गोज इन द ग्रुप. सो इफ यू वांट टू रिवाइज द सम एंड देन अकॉर्डिंगली वी सॉल्व द सम ऑन द बोर्ड. चलेगा ये सिस्टम. डू यू अंडरस्टैंड हाउ माई क्लासेज वर्क? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. क्लियर है? एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? नथिंग. ISC Eco, only book prescribed in all schools is Frank. CBSE Eco, I don't teach with a book. You buy whatever you want, just don't buy NCERT. NCERT is utter garbage. उनको खुद नहीं पता वो क्या छाप कर दे रहे हैं. You buy any book, I don't care. Jain and Nori, BL Gupta, Saraswati, any book. I don't use a book. But you need a book. कोई भी किताब चलेगी as long as it is not NCERT. Clear है? Does that work? Perfect. फीस के बारे में बात कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा जरूरी है. 1500 is for only accounts. For ISC it is 1500 plus 300 rupees क्योंकि once a week रखा है 1800. For CBSE it is 1500 for one subject and 2200 for both because you have twice a week. And for only Eco it is only 500 monthly. भैया ये भेदभाव क्यों? मार्केटिंग है. एक सब्जेक्ट लोगे तो ज़्यादा पड़ेगा, 2 सब्जेक्ट लोगे तो कम पड़ेगा. इट्स एज सिंपल एज दैट. आई एम बीइंग ऑनेस्ट. अगर यहाँ पे आप ISC BSE हैं तो आपके लिए अच्छा डील है. एक सब्जेक्ट 1500 का है, हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 4 दिन 2200, तो 1100 रुपया पर सब्जेक्ट हो गया, है ना. तो दैट इज दिस इज द सेम रेट्स इन क्लास 12. मेरा 11 और 12 में फीस को लेकर कोई डिफरेंस नहीं है. ISC का है क्यों? क्योंकि वंस अ वीक है और मेरा इकोनॉमिक्स क्लासेस हमेशा ट्वाइस अ वीक ही होता है 12 में. ISC में वो एक दिन कम है तो इसीलिए 400 रुपीज़ कम है. वर्क्स, एवरीथिंग इज ओके, परफेक्ट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट आर योर इश्यूज. कुछ बोलना है मैम? कुछ नहीं. 8:30. नाउ यू टेल मी विच डे यू वुड वांट. इट कैनॉट जस्ट बी Tuesday and Friday because that is they come here. चलेगा. Thursday चलेगा. Do you want only one day for morning or any other day would also? So Wednesday you would do and then Thursday in the morning. Perfect. So day 2 you want in the morning. Perfect. हाँ, पर वही day 2 पहले होगा, day 1 बाद में होगा. चलेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा. टॉपिक्स आर नॉट गोइंग टू बी रिलेटेड एवरी टाइम बिकॉज इट्स सच ए ह्यूज सिलेबस ना. कुछ ना कुछ नया ही होता है हर क्लास में, है ना. बट विल टॉक अबाउट इट, विल थिंक अबाउट इट. क्या थर्सडे फाइनल कर दें क्या फिर कि यू वुड वांट टू स्टार्ट विद द इवनिंग बैचेस एंड देन लेटर ऑन ग्रेजुअली ऐड. एक आध क्लास करके देखो पहले, क्या पता तुम क्लास में आए और तुमको अच्छा ही नहीं लगा, बोले क्या बकवास पढ़ाता है यार, मॉर्निंग का सिचुएशन ही नहीं आए. सोच कर देखो, एक आध क्लास करो एंड देन आई प्रॉमिस यू आई विल ट्राई टू अकोमोडेट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. आई विल गो आउट ऑफ माई वे इवन इफ वन स्टूडेंट इज इनकन्वीनियंस्ड, कि कुछ ना कुछ करके मैं ट्राई करूंगा कि आपके साथ संभव हो पाए. पर पहले चालू करते हैं. मॉर्निंग बनेगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ. सैटरडे संडे एक ऐड और होगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ. अभी चालू नहीं हुआ है एक्चुअली, है ना. आप खुद ही देख रहे होंगे आपके दोस्त लोग अभी थोड़ा सा रिलैक्स्ड मोड में है. ये तो मैं जबरदस्ती करके चालू करा रहा हूँ. अभी भी मैं आपको टेक्स्ट पढ़ा सकता हूँ, वी विल नॉट स्टार्ट क्लासेस राइट नाउ, डोंट डू दिस. ये अभी बोर्ड दिए हैं, 27 तारीख को खत्म हुआ है. आई अंडरस्टैंड दैट,
That is why I gave an option कि do you want me to start classes from Saturday, Sunday? Everybody said no. We will start from next Wednesday. I said okay. So next Wednesday से आपकी classes full fledgedly accounts की शुरू है for CBSE Eco. Tuesday would be your first class. Tanvi wants to ask something. हाँ सर, भैया इको के लिए कोई और बैच है क्या? अभी नहीं है पर बनेगा. मेरे को बताइए तन्वी what is the issue? I'll try to solve it. सर टाइमिंग का इशू है. क्या इशू है बताइए थोड़ा. मतलब दूसरा ट्यूशन है उसमें. हम सर रिटर्न करते हैं होम अराउंड 3:45 3:50 हो जाता है. Okay, your Shreyansh's sister. Okay. Yes, I spoke to your mom. I will try. अच्छा, if I make it 4:15, still a difficulty? हाँ सर, थोड़ा प्रॉब्लम होता है. 4:30. हाँ सर, 4:30. So let me speak to the batch because they have gone and discussed. तो जब next आएंगे Tuesday को, तो I will ask them if works. Then we'll try to come to 4:30. चलेगा? ओके सर. हाँ सर. Perfect. चलिए. Just give me 5-10 minutes and then we'll call it a day. पूछो ना प्लीज. मेरा बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है मैम मालूम है? आप मेरे से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. दैट इज द ओनली रीजन दैट आई एम नोन फॉर माई नेम कि आई डू नॉट क्रिटिसाइज एनीवन हु आस्क्स मी अ डाउट. यस फॉर CBSE. For ISC 2+1. Eventually, yes. Absolutely. We will add Sunday 12:30 for ISC. चलेगा? So one thing I want to talk about is, मैम क्या बोला अपना नाम? कृपा, why do we need to study? ये क्लास 11 का इतना ज्ञान, नया ट्यूशन, नया सब्जेक्ट, इसका फायदा ही क्या है? Why have you studied for the last 10 years now approximately ना? नर्सरी KG को काउंट मत करो. क्लास 1 से ही आपको चालू कर दिया आपकी लड़ाई. 2 into 1 2, 2 into 2 2, 2 into 3. Why did you done this? What is the reason that you have told yourself? अपने आप को क्या बोला आपने कि मैं क्यों पढ़ रही हूँ? What is the reason? मम्मी पापा बोले हैं. What is the reason that you are studying today? कुछ तो कारण होगा. some rational. मार्क्स देख के खुशी मिलती है. ठीक है, परफेक्ट. बट लेट मी टेल यू द आइडिया ऑफ टीचिंग ओल्डर स्टूडेंट्स. मेरे को ना बहुत पेरेंट्स आके बोलते हैं कि आप मेरे छोटे बच्चे को पढ़ा सकते हैं क्या, 4-5 में है, थोड़ा सा उसको हेल्प कर देंगे क्या. मैं बोलता हूँ कि नहीं, मैं ना स्पेशलाइज नहीं करता. आई डोंट अपील टू दैट जेंडर. मतलब उस लेवल पे मेरे को बच्चे मतलब बोलना नहीं चाहिए, थोड़े इरिटेटिंग लगते हैं क्योंकि उनमें वो समझ नहीं होती है कि वो सही और गलत को पहचान पाए. सो द ओनली रीजन वी डू 11, 12 एंड अबव इज दैट द एजुकेशन दैट वी आर लुकिंग फॉर इज ओनली वन थिंग, टू अवेकन योर विजडम. और कोई कारण नहीं है ना. हिंदी में अगर आप समझते हैं, अमेंडा डू अंडरस्टैंड हिंदी? व्हाट्स योर सेकंड लैंग्वेज? परफेक्ट. विवेक को जगाने के लिए, नॉट विवेक पर्सन के उठ विवेक, विवेक इज विजडम. सो टू हैव दैट विजडम. क्योंकि एक बच्चे से पूछा सुबह, बहुत हर्ट हुआ मैं उस आंसर से. बोला क्यों पढ़ते हैं? पैसा कमाने के लिए. नहीं सर, मैं आपको डायरेक्टली आपके टीचर होके मैं बोल रहा हूँ, यू डू नॉट नीड एजुकेशन टू अर्न मनी. आई प्रॉमिस यू दैट. यू कैन लर्न टन्स एंड टन्स ऑफ मनी विदाउट इवन लर्निंग वन थिंग. यू हैव मिलियंस ऑफ एग्जाम्पल्स. ओके, इफ एजुकेशन वॉज द ओनली थिंग दैट वॉज रिक्वायर्ड टू अर्न मनी, the richest person in India would be teachers. है ना, हम लोग से ज़्यादा कोई अमीर नहीं होता, सबसे ज़्यादा पढ़ाई हमने की है. So that it does not work like that. But what does education or what our class 11, 12 syllabus asks from us is wisdom. Now you would ask, how do I know that if this is helping me or not? I always say 4 acronyms. जिस दिन आपको ये लगे ये 4 आप में है, आप समझ लेना अब आप जीवन में कभी फेल नहीं होगे. CSOP. Number 1, curiosity. That is the 4 significances या 4 main indications of a wise person. सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी एक छोटे बच्चे में होती है. जैसे मेरी बेटी आपने देखा था अभी, उसको एक पेन दोगे वो ऐसे देखती है कि वाव. सो द मार्क ऑफ ए वाइज मैन इज वेरी सिंपल. वो हर चीज़ को क्वेश्चन करेगा.
द रीजन फॉर एजुकेशन इज दैट कि आप हर चीज को क्वेश्चन करें, हर चीज को क्वेश्चन करें। आपका हक है जानना। एवरी सिंगल थिंग नीड्स टू बी एडेड विद अ क्वेश्चन मार्क। क्यों? इफ दैट इज योर लाइन ऑफ थिंकिंग, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। मैं इसको इससे मिलाऊंगा तो क्या होगा, वहीं से इन्वेंशन हुआ। अगर मैं कोई ऐसी चीज, इमेजिन यू सीइंग अ साइकिल फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ, यू वुड हैव थॉट इट्स मैजिक। जीवन में पहली बार आप एक रोड पर 2 चक्का को चलते हुए देखते आ रहे हैं, आपको लगेगा भगवान के दर्शन हो गए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ, दैट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ अ क्यूरियस माइंड। सेकेंड, सिंप्लीफिकेशन। Why do we study? To simplify things. Define Mahabharata in two words. Property dispute. 2 भाइयों में लड़ाई क्यों हुई? ये मेरा है, वो तुम्हारा है, घर घर की कहानी है। एक भाई दूसरे पे केस कर रहा है, लिया वो लड़ाई हो रही थी, सेम ही तो सिचुएशन है। सो टू अंडरस्टैंड मल्टीपल डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स इन अ सिंपल मैनर, दैट इज द आइडिया ऑफ एजुकेशन। थर्ड, ऑब्जर्वेशन। कोई भी चीज ऑब्जर्व करो, बाल बाल बचे, मतलब यू वर सेव्ड बाय अ माइन्यूट डिस्टेंस। कहावत बना दी है, समबडी मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड ना, डूबते को तिनके का सहारा। कोई डूब रहा होगा, कोई ऑब्जर्व किया होगा कि अरे ये तो डूबने वाला है, तिनका डाला तो फ्लोट करने लग गया, वो पकड़ लिया। सो व्हाट इज द मार्क ऑफ अ वाइज मैन? ऑब्जर्वेशन। लास्ट, मेरा मेन मोटिव है आपको सिर्फ ये नहीं कराना, ये मतलब ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यार। जिस दिन आप ये समझ लिए, आपको जीवन में पैसे की कमी नहीं होगी, क्योंकि हर चीज़ का जवाब किताब में नहीं होता। क्या सही है, क्या गलत है, कब आपको शांत बैठना है, कब नहीं बैठना है, वो आप एक एजुकेटेड माइंड से ही सीख सकते हैं, नहीं तो नहीं सीख सकते। ह्यूमंस को छोड़कर किसी भी स्पीशीज़ में, क्या नाम था भूल गया, पूर्वी कोई भी स्पीशीज में एजुकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। यू कैन ट्रेन एन एनिमल, यू कांट एजुकेट एन एनिमल। इट इज ओनली अस ह्यूमंस दैट वी आर एट द टॉप ऑफ द फूड चेन बिकॉज ऑफ दिस। डू नॉट एवर टेल मी दैट वी आर स्टडिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। यू आर स्टडिंग टू फॉर योर ओवरऑल डेवलपमेंट, यू आर नॉट स्टडिंग फॉर मनी। अगर इफ योर मेन मोटिव इज मनी, मैं आपको बोल रहा हूं, ड्रॉप योर एजुकेशन, start some business, you are going to be extremely successful. Do not go halfway कि हाँ मैं पढ़ रहा हूं पैसे कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ोगे अपने आप के लिए। जिस दिन आप ये 4 चीज अक्वायर कर लिए, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, पैसे अपने आप आ जाएंगे। चाहे आप पुचके वाला बनोगे ना, तो भी आप पिक्चर में आ जाओगे। वो परिणीति देखे, ये हमारे यहाँ पे एक पुचका वाला है, बड़ा पुचका वाला, देखिएगा वो मूवी में आया है। उनके बेटे को पढ़ाए हम, डीबीपीसी में पढ़ता है वो, इज अ वेरी बिग मैन, है तो पुचके वाले ना। इट डज नॉट मैटर व्हाट वर्क यू डू, इफ यू हैव विजडम you will do anything in life and you're going to be successful. Start with that concept, start with that mentality rather than पढ़ना है क्योंकि पढ़ना है, क्योंकि मार्क्स आएगा, irrelevant है। मार्क्स अपने आप आ जाएगा। तुम सोचो, तुम क्यूरियस हो, तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो थिंग्स, तुम ऑब्जर्व कर सकते हो थिंग्स, तुम्हारी पर्सनैलिटी है, कौन रोकेगा तुमको? चांस ही नहीं है। सो दैट इज माई मैसेज टू एवरीवन दैट आई हैव एवर टॉट। डोंट स्टडी फॉर द सेक ऑफ इट। नहीं पढ़ना, मुंह पे बोलो नहीं पढ़ना। डोंट प्रोकैस्टिनेट कि अच्छा कल पढ़ते परसों पढ़ते, ये नहीं चलता। मेक अ डिसीजन, स्टिक टू इट। चलेगा? बस इंट्रोड्यूस करके हम आपको छोड़ देंगे आज। कैसे? पूरे अकाउंट्स में 5 मिनट बात कर सकते हैं अकाउंट्स का, कि जाना है? अकाउंट्स में पूरे में सिर्फ तन्वी, इफ यू वांट यू कैन लीव, और इफ यू वांट टू लिसन प्लीज लिसन। पूरे अकाउंट्स में एसेट, लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस को छोड़कर, 4 पिलर छोड़कर कुछ नहीं है। तो जब आप मेरे को बताए ना कि स्कूल में हुआ, तो मेरे को लगा यार ये अकाउंट्स में क्यों बता रहे हैं। पूरे अकाउंट्स में ओनली 4 थिंग्स आर देयर, ओनली 4 थिंग्स। टुडे इफ यू अंडरस्टैंड दिस इन 10 मिनट्स, यू डू 50% ऑफ अकाउंट्स इन द फर्स्ट डे। पूरा अकाउंट सिर्फ 4 चीज पर निर्भर है।
Asset, expense, income, liability. Aditi, what do you think is an asset? Okay, I have kachori in the morning. Is that my asset? No. Anything that you own, acquire, have rights on, and that is expected to give you a future economic benefit. Something that you own, you have to own it. भाड़े का नहीं चलेगा. It cannot be rented, it cannot be for someone else. It has to be your property, you have a right on it, and that property or that asset is expected to give you a future economic benefit. That is why we say property, land, building, furniture, jewelry, assets. Anything that is expected to give you a future economic benefit. कृपा, right? कृपा, ये बोर्ड मेरे लिए क्या है? Asset है. Why? Because I expect this to go for maybe more 4 years. A future economic benefit. भगवान ना करे कल ये टूट के गिर जाए. Do I change the definition of an asset? When I bought it, what was my expectation? Future economic benefit. It was my asset. If this breaks, it is going to be loss of asset, but still an asset. Anything that gives you a future economic benefit or expected to give you a future economic benefit is an asset. Please do not judge it on the basis of the amount. कि बड़ा अमाउंट एसेट होता है, छोटा अमाउंट एक्सपेंस होता है. एसेट और एक्सपेंस का डेफिनेशन में फर्क ये है, समथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड टू गिव यू अ करंट इकोनॉमिक बेनिफिट इज एन एक्सपेंडिचर, एंड समथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड टू गिव यू अ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज एन एसेट. फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव अ नेटफ्लिक्स अकाउंट? इज इट 4 जन में डिवाइडेड वाला 250 वाला कि पूरा अपना वाला है? डिवाइडेड वाला है. सो मैम वो जो 250 रुपीज़ आप देते हैं या 200 रुपीज़ आप देते हैं, इज इट द बेनिफिट फॉर मोर देन अ मंथ और जस्ट अ मंथ? इफ यू डोंट पे दैट मंथ, वुड यू गेट दैट बेनिफिट? नो. सो इट्स एन एक्सपेंडिचर. द इलेक्ट्रिसिटी दैट यू पे, इफ यू डोंट पे फॉर अ मंथ, will you still get electricity? The domestic help that you have at home, if you don't pay their salary, will you keep getting the benefit? So what is the benefit restricted to? Current economic benefit. खर्चे हैं, हिंदी में बोलते हैं ना खर्चा हो गया. लेकिन आप जब गाड़ी लेते हो, are you considering it to go for more than a year? Asset. Are you considering it कि आप वो क्या नाम है यार उस रोहित शेट्टी, गाड़ी पिक्चर में उड़ा देता है, उसके लिए क्या बोलेंगे? वो गाड़ी लेता ही क्यों है? उड़ाने के लिए. इज इट गोइंग टू गिव फ्यूचर इकोनॉमी बेनिफिट कि फट जाएगा वो? खर्चा बन जाएगा. अमाउंट इररिलेवेंट है. मेरे लिए एसी क्या है? एसेट है. खोसला इलेक्ट्रॉनिक्स क्या सोचता है? एसी लू सालों बाद बिके कि संग संग बिके? खर्चा है उसका. मैं गाड़ी लिया, मेरे लिए एसेट है. सैनी हुंडई गाड़ी ले तो एक्सपेंस है उसका. सो ये ना जनरल बातें नहीं होती. अब लैंड एंड बिल्डिंग इज ऑलवेज एसेट. नो, डीएलएफ बाइज प्रॉपर्टी टू सेल and they want it to sell as fast as possible. They don't want it to sell after a year. है ना? I buy a camera, asset. But a person who deals in camera, it's an expenditure. It is goods for him. It is purchase of raw material. I buy furniture, asset, because सालों साल चलाना है. पर एक होमलैंड क्या सोचेगा? भाई आज लो कल बिके भगवान करे. Amount is not the criteria. The expectation of the benefit is the criteria. आपका जो फ़ोन है कितने साल चलाने का सोच रहे हैं? मैं 1 महीना. जनरली 10 के बाद बदलते हैं लोग. जनरली रिजल्ट आता है और फिर वो रखा जाता है टेबल पे. चलो बाबा, आईफोन 15 मैक्स प्रो प्लस माइनस 22, वो वाला नया लेटेस्ट मॉडल आ जाता है. बट जोक्स अपार्ट, यू एक्सपेक्ट इट टू गो फॉर मोर देन अ ईयर व्हेन यू आर बाइंग इट. एसेट. बट द रिचार्ज दैट यू डू मंथली, एक्सपेंडिचर. बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है. खर्चा और एसेट दोनों में देखिए पैसे जाते हैं. सोना खरीदें तो भी है, और अगर आप मान लीजिए मेरी ट्यूशन फीस दे रहे हैं उसमें भी पैसे जाते हैं. पर मेरा बेनिफिट आपको खाली अभी तक का मिलेगा. जिस महीने फीस देंगे उस महीने सर्विस मिलेगी. कुछ फ्यूचर का नहीं है, जो है करंट बेनिफिट है ना. डिफरेंस आता है फिर दो अक्षरों में और, लास्ट आई प्रॉमिस. लाइबिलिटी एंड इनकम. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? पहले तो लाइबिलिटी पूछते हैं ना,
तो बच्चा अपना वो इंग्लिश वाला लाइबिलिटी बोल देता है, बोलता है हार्दिक पांड्या इज अ लाइबिलिटी. नो, दैट लाइबिलिटी थिंग इज नॉट डिस्कस्ड हियर. लाइबिलिटी जितना नेगेटिव कॉनोटेशन से है उतना नेगेटिव है नहीं. लाइबिलिटी मीन्स दैट व्हाट वी ओ अदर्स. व्हेन वी टेक अ लोन वी नीड टू रीपे दैट, इट्स अ लाइबिलिटी. मैंने आप मेरे से पढ़े, कृपा बोली भैया आई एम नॉट गोइंग टू पे दिस मंथ, आई एम नॉट आउट ऑफ स्टेशन, आई एम गोइंग टू पे लेटर. I am a liability for her. It does not mean that I am a bad person. Please stop considering liabilities as a bad thing. 90% of people, 99% of people who have bought homes is because of a loan. If you did not have the benefit of a home loan, 90, ये मेरा स्टैट्स नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट का स्टेटिस्टिक्स है, 99% of homeowners have taken a home loan and then they were able to buy a loan, buy a house. So loan is not a bad thing. A liability is not something that is to be seen with a negative connotation. Oh, liability है ये, वो नहीं बहुत बात हो रहा है. Liability means what we owe others. कृपा उल्टा करती है, बोलती है भैया क्या पढ़ाए हैं, ये लीजिए क्लास 12 का फीस. बोला आप तो 11 में हो. बोला नहीं अगले साल का भी रखिए. क्या मैंने सर्विस दे दी आपको? आई ओ यू दैट, राइट? यू आर अ लाइबिलिटी. वॉट वी ओ अदर्स, दैट इज अ लाइबिलिटी. है ना? पूर्वी बोली कि भैया क्या सॉलिड पढ़ाए, ये लीजिए 5 लाख गिफ्ट. एक बार ट्राई करो, एक जीरो कम भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. बट जोक्स अपार्ट, दैट इज इनकम. I don't have to repay back. But she comes and says, take this money, whenever you have, give it back. That's a liability. Agreed? एक philosophical question पूछ सकता हूँ. Please do not attach the negative connotation. Negative बात मत लेके आ जाना, liability गंदा होता है, नहीं होता है. Liability अच्छा होता है ना? Who do you owe the most in your life? इसीलिए तो बोलते हैं we are most liable to our parents. है ना? लाइबिलिटी बुरा नहीं है यार. आप कभी ना सुने होंगे ऐसे, मतलब कुछ लोग होते हैं हमारा तो कुछ नहीं, सब भगवान का है. इनडायरेक्टली वो क्या बोल रहे हैं समझ रहे हैं? उनका है ही नहीं, दे ओ इट टू गॉड. यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस, बिकॉज आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू अ कॉन्सेप्ट विच सम ऑफ यू नो हु हैव हैड कॉमर्स इन क्लास 9-10, बट आई वांट इट टू बी अ न्यू थिंग फॉर यू. द बिगेस्ट लाइबिलिटी, सुन के वियर्ड लगेगा हाँ, और लड़ना इस बात पे, द बिगेस्ट लाइबिलिटी ऑफ अ बिजनेस इज द ओनर हिमसेल्फ. रिलायंस में सबसे बड़ा लाइबिलिटी मुकेश अंबानी है. नॉट बिकॉज बुरा आदमी है, बिकॉज रिलायंस एक इंसान है, अ सेपरेट लीगल एंटिटी. एंड इफ RKC, माई इंस्टीट्यूट, इज अ सेपरेट पर्सन. इमेजिन करो कि ये RKC है, ये चेयर, और ये प्रकट हुआ है, और एक इंसान है, और ये मैं हूं. ये मेरा बाइसेप्स है, और मैंने इसको 5 लाख रुपए दिए हैं कि बिजनेस में लगाने के लिए. RKC बन के सोचो, RKC सोचो ऐसे रात को बैठा है, यार रोहिन खन्ना ने 5 लाख दिए थे, कभी ना कभी तो चुकाने होंगे. थिंक अबाउट इट. इट्स मतलब अ वेरी बिग रेवलेशन. आज सुबह वाले 4 बजे बैच, शाम के 4 बजे बैच में, और सुबह वाले से पूछा व्हाट इज कैपिटल, ऑल ऑफ देम सेड एसेट. दे आर नॉट रॉन्ग. फ्रॉम हुज पर्सपेक्टिव इज इट इज एन एसेट? फ्रॉम रोहिन, yes it is an asset for me. I expect future benefits from RKC, but we never make accounts of the owner. We only make accounts of the business. मुकेश अंबानी का अकाउंट्स नहीं बनता, रिलायंस का अकाउंट्स बनता है ना? आप मिस्टर MP बिरला को पैसे नहीं देते हैं, वो तो जा चुके हैं. आप MP बिरला क्या हायर फाउंडेशन हायर सेकेंडरी स्कूल को पैसे देते हैं. वी फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ अ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. आप कभी गए हैं क्या? हेलो गोइंका जी, लाइट चला गया, आपका बिल तो भरे थे, पैसा नहीं दे. आप CSC को फोन करते हैं. वी नेवर मेक अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल पीपल, वी ऑलवेज मेक अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस. एंड फॉर द बिजनेस, हु इज द वन पर्सन हु इज प्रोवाइडेड द मैक्सिमम मनी? द ओनर हिमसेल्फ. दैट इज वाई कैपिटल इज द बिगेस्ट लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस. सोचिए ना, कृपा RKC बंद हो जाता है,
है ना। RKC को ये पैसा वापस करना होगा कि नहीं करना होगा? सो डोंट यू थिंक ही ओज इट टू द ओनर? That is why once we start accountancy, you will learn that capital is the biggest liability for a business. In a sole proprietor, it is normal capital. Partnership, it is normal capital. In a company, it becomes share capital. पर मीनिंग वही है. आप जब पीयूष बंसल के पास जाते हैं शार्क टैंक में पैसा उठाने, वो आपको पैसा देता है, कभी भी तो वो एग्जिट करेगा तो आपको पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा उसका. Think from the business's perspective, not from the owner's perspective. If today me, Purvi and मान लीजिए श्रेया want to start a business and we put 5 lakh each and then झगड़ा हो जाता है हमारा and श्रेया wants to move, मैं बोलती नहीं करेंगे हम तुम्हारे साथ, तो 5 लाख वापस करना पड़ेगा. नहीं बोल सकते श्रेया जाओ कट्टी तुम्हारा पैसा हमारा हो गया. हाँ ठीक है, कट्टी इज ओके बट गिव मी बैक माई मनी, है ना. सो द कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज द बिगेस्ट लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस. एंड ऑब्वियसली इनकम्स आप समझते ही हैं क्या होती हैं. इनकम्स आर थिंग्स दैट यू अर्न. And it is a very sad affair that in a class 11-12 discussion we don't teach it, but I try to incorporate as much as possible. In taxation there are only 5 heads of income. मात्र 5 चीज़ पर ही इनकम बोला जा सकता है, सिर्फ 5. एक, प्रॉफिट्स गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. तो पहले बात कर लेते हैं पूर्वी से कि बिजनेस और प्रोफेशन में अंतर क्या है. जानते हैं मैम? इफ़ यू डोंट माइंड, पेरेंट्स का आपका जॉब है, बिजनेस है, क्या है, किस चीज़ का मैम? ओनली इफ यू आर ओके विद इट देन से. एक बार 2 साल पहले बोल दिए थे, उसके पीछे ही पड़ गए. उसके पापा वो थे, क्या नाम है, ट्रैवल एजेंट. सारा लोग पीछे पड़ गया, भाई छुट्टी का क्या होगा, हमारा भी छुट्टी बुक करके दो. ओनली इफ यू आर ओके विद इट देन टेल मी. मैन्युफैक्चर करते हैं कि ट्रेडिंग करते हैं? तो बिजनेस है. परफेक्ट आंसर. मैम आपके पेरेंट्स का क्या काम है? सॉरी क्या होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए. अच्छा, IPR सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन वगैरह. डैड इज ए CA हैं. फर्म में होंगे, बहुत सारे रखे होंगे मैम, खुद ही का है. सो मैम दैट इज ऑल्सो बिजनेस. श्रेया पेरेंट्स का क्या काम है? काम बिजनेस. परफेक्ट मैम, बिजनेस. अब मैं किसी के भी पापा CA, CS, लॉयर या डॉक्टर हैं? लॉयर है, डॉक्टर है. एनीबडी हु इज एसोसिएटेड टू अ स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, दैट इज कॉल्ड अ प्रोफेशन. बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये होता है कि जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो प्रोफेशन होते हैं. नहीं, मेरा भी बिजनेस है. देयर इज नो ट्यूशन टीचिंग अकेडमी ऑफ इंडिया विच आई एम एफिलिएटेड टू, और आई पास्ड एन एग्जाम टू बिकम अ ट्यूशन टीचर. कल आप बन जाओ, कोई नहीं रोकेगा आपको. देयर इज नो बार्बर एसोसिएशन इन इंडिया कि भाई ये एग्जाम पास करेगा ना, जावेद हबीब का सिग्नेचर होना चाहिए सर्टिफिकेट में, तब जाके तुम नहीं बनेगो. बिजनेस है. पर जब तक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का एग्जाम दे के आप क्लियर नहीं करोगे, जब तक आप बार काउंसिल में जाकर LLB कंप्लीट नहीं करोगे, जब तक आप इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का एग्जाम क्लियर नहीं करोगे, जब तक आप ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज का एग्जाम क्लियर नहीं करोगे, तब तक आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आप उस फ्रेटर्निटी का पार्ट नहीं हो सकते. वो हो गया प्रोफेशन. और तीसरा क्राइटेरिया, अगर आपके पेरेंट्स जॉब में हैं, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट. 3 बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्निंग मनी. बहुत लोगों को ये डिफरेंस नहीं पता है. और एक फ़र्क आपको पता होना चाहिए, मैंने इस पर रील भी बनाया था, तो चाहता था जितने लोग तक पहुँचे बेटर है. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एन एंटरप्रेन्योर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड. बहुत लोगों को लगता है कि सब जो भी कोई काम करता है वो एंटरप्रेन्योर हो जाता है. फैंसी है ना, मज़ेदार वर्ड है. अभी इन है, हु आर यू? एंटरप्रेन्योर. स्पेलिंग पूछ लो, नहीं पता है. नहीं, ओनर वो ठीक है, पर फ़र्क है सर. मैं नहीं हूँ एंटरप्रेन्योर. मेरे को बनना है, बहुत कूल लगता है हमको एंटरप्रेन्योर होना, पर मैं नहीं हूँ. आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड. आई हैव क्रिएटेड अ जॉब फॉर माई सेल्फ. मैं कंपनी का मालिक हूँ, पर मैं कंपनी का एम्प्लॉई. लेकिन एंटरप्रेन्योर होता है जो लोगों के लिए काम क्रिएट करता है. जो ओनर तो होता है, पर उसका बिजनेस चलाने के लिए एम्प्लॉई होते हैं. मेरे बिना मेरा इंस्टीट्यूट नहीं चलेगा. जितने भी टीचर्स हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड है ना. इफ डैड इज वर्किंग इन
BP Poddar, that is employment. If dad has its own practice, चेंबर अलग से एक और खोल के रखे हैं, that is self employment. You cannot call a doctor an entrepreneur. You cannot call a chartered accountant an entrepreneur. They are self employed. They are owners who work for themselves. That is the idea behind self employment. So any income generated from these people should be treated as incomes. That is PGBP, profit gains from business and profession. First head of income. Second head of income, anybody whose parents are in a job, salary. Third, anybody has property जहाँ से rent आता है, income from house property. Anybody has income from FDs, dividends or any other income, lottery, that is IFOS, income from other sources. Fifth head of income is capital gains, selling an asset at a higher valuation, selling something at a profit. शेयर मार्केट में अगर किसी के आपके पेरेंट्स हैं, 1 लाख का खरीदे 1.5 में बेचे, 50,000 प्रॉफिट फ्रॉम कैपिटल गेन्स. नॉट 1 लाख, नॉट 1.5 लाख, 1 लाख का तो एसेट सेल हुआ है, इनकम कितना जनरेट हुआ है? 50,000. ये 4 चीज पर आप बिलीव नहीं करेंगे, पूरा अकाउंट खत्म हो जाता है. पर हाँ, इसके अंदर 36 टाइप के एसेट आ जाएंगे. टेंजिबल, इनटेंजिबल, फिक्टिशियस, रियल, लिक्विड एसेट्स, करेंट एसेट्स. मतलब आप बिलीव करिए, इतना बड़ा कहानी है. इंटेंजिबल के अंदर भी बहुत कुछ है. पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, ट्रेडमार्क, बहुत कुछ है. लायबिलिटी 2 ही प्रकार की होती हैं, मालिक की, बाहर वाले की. 2 ही लायबिलिटी है. पैसा उठाए हैं मालिक से, क्या है? कैपिटल. पैसा उठाए हैं बाहर वाले से, लोन. और कोई डिफरेंस ही नहीं है. एक्सपेंसेस का तो कोई अंत ही नहीं है. मतलब वही बच्चा से पूछे 70 तो अभी बता दे. बताओ ना यार मैम, IPR के कुछ खर्चे. ऑफिस में जाते होंगे, क्या क्या खर्चे हैं? देखिए, कोई रिसेप्शन पे बैठाए हैं किसी को, उनको सैलरी. कोई दरवान भी होगा. वाईफाई है आपके ऑफिस में, वाईफाई, कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस है ना, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, बहुत कुछ खर्चे हैं. What is the difference? Last question and then we'll end the class. What is the difference between Mehak, an expense and a loss? हिंदी में बोलूँगा ना फट जान, हिंदी से बेटर कोई लैंग्वेज ही नहीं है. हम बोल रहे हैं. वाह, क्या बढ़िया आंसर. आप खुद मजा नहीं आया? वाह. एक्सपेंस जो एक्सपेंस है, खर्चा. लॉस जो लॉस है. इससे सिंप्लीफाइड वही था ना, CSOP, सिंप्लीफाइड. हिंदी में बोलेंगे ना फट से आ जाएगा यार. खर्चा, नुकसान. खर्चा और नुकसान. खर्चे में कुछ मिलता है. आप हमको पैसा दे रहे हैं, भगवान ना करे आपका नुकसान हो रहा हो कि या वेस्ट ही होगा भैया को पैसा देना, आप एक्सपेंस बोलेंगे कि आपको उसके बदले सर्विस मिल रहा है. लॉस कब है? जब अमांडा आई नहीं ट्यूशन और 1500 रुपये ट्रांसफर कर दी, वो नुकसान है मैम. उसके बदले आपको कुछ मिला नहीं. आते आते आप आ रहे थे, आपके 500 रुपये गिर गए, वो खर्चा नहीं हुआ आपका, नुकसान हुआ आपका. There is a difference between expense and loss. Similarly, income and gains. We will discuss all this once we start our class. This is nothing that we have discussed. It's just an introduction to generate some kind of interest that you look forward to studying this subject. And it will all boil down to that. Trust me. If I am unable to generate interest in the first 2-3 classes, change the tuition. I am telling you as your teacher. है ना, अगर मैं आपको इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर पा रहा हूं, यू नीड अ बेटर टीचर. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. कॉन्सेप्ट बहुत इजी है. कॉन्सेप्ट पे टिकने के लिए इंटरेस्ट आना होगा. इंटरेस्ट नहीं रहेगा, इजी चीज भी टफ लगेगा. सो मन करना पड़ेगा यार, आज अकाउंट्स पढ़ने चलते हैं, कुछ नया सीखेंगे, इंटरेस्टिंग है, ये वर्ड यूज करना पड़ेगा. तब जाके आपको भी मजा आएगा और यू वुड इंजॉय वाइल स्टडिंग. And anything you do while, when you enjoy it, you will not feel like you are working hard for it. क्रिकेट खेलते खेलते कितना देखे बच्चा लोग पसीना से भीग जाता है. Only a sports person or an athlete knows how difficult it is to work out.
बट इफ़ यू सी अ जिम रैट यू विल नो कि यार ये वर्कआउट करते करते हंस कैसे रहा है, बिकॉज उसको मज़ा आ रहा है. जो भी जिम जाते हैं ना, उनको उनसे बात करिए 1 मिनट, कैसे उनको मज़ा आ सकता है अपनी बॉडी तोड़ने में. लिटरली यू नो हाउ द जिम थिंग वर्क्स, राइट? यू ब्रेक योर मसल्स and then have protein to build it again. You are literally breaking your body and you are enjoying it. And you go every day. Only because of intent. अगर इंटेंट होगा तो आपको मजा आएगा जिम जाके. और कुछ लोगों को देखेंगे, नहीं होगा यार, हमसे नहीं होगा, आएंगे गपिया के जिम में चले जाएंगे, बिकॉज दे डोंट वांट टू डू इट. सो इट्स जस्ट, इफ आई कैन जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड दिस, हाफ ऑफ माई जॉब इज डन. उसके बाद तो सिलेबस कंप्लीट करना है, वो तो कैसे भी हो जाएगा. मेन है यू स्टे वेस्टेड इन इट, यू स्टे इंटरेस्टेड इन इट एंड यू एंजॉय द सब्जेक्ट. इफ यू डू दैट नाउ इट हेल्प्स इन द फ्यूचर. सो वी मीट व्हेन? नेक्स्ट वेंसडे? और यू वांट टू स्टार्ट सैटरडे संडे? नहीं, सैटरडे संडे let's do one class. सैटरडे को day 1 लाइक इन इंट्रोडक्शन, जिसको ऑप्शनल रखते हैं. जिसको लगता है आना ठीक है आएगा, उसको नहीं लगता है नहीं हम तो नेक्स्ट वीक से ही आएंगे, हम बहुत थक गए हैं बोर्ड देकर, ठीक है आप नेक्स्ट वीक से आओ, मैं समझ सकता हूँ, बट लेट मी स्टार्ट एटलीस्ट. ठीक है, तो मैं ग्रुप में लिख दूंगा एंड देन वील स्टार्ट. ठीक है, चलिए. मैं 2